Good morning to students of standard 6th of SPS. We have started our new chapter that was separation of substances, and now we are continuing in this chapter. We have seen many methods till now of separation of substances. Why we are doing all these things? To take out the useful things from the non-useful things in our day-to-day life. That's why we are using all these methods. We have finished the last method, that was about the sedimentation, decantation and the filtration method. Now we will study about another method that will come in the activity number 6. It is known as a evaporation method. Okay. In evaporation method, what happens in the evaporation method, that at any time, if the things are mixed well or the things which are dissolved with the water, then how you will just separate that things? To separate that things, we are using the evaporation method. Okay, student. So, to separate the things or the substance which dissolve with the water, or if it mix with the water very well, then how we will separate that method? It is known as a evaporation method, and with the help of that evaporation method we can just separate all these things. To understand about the evaporation method, we will take an activity number 6 and we will see what does it want to say us about the evaporation. Okay, in the evaporation method, we'll take a beaker, and in this beaker we'll add a water. We'll take the water and 2 to 3 teaspoons of a salt in it. इसमें हमने क्या डाला है? तो कि इसमें हमने salt डाल दिया. Okay, we have mixed it well. It gets dissolved with the water, we know that. Yes, and after that you are saying and after that you will see that you will keep this beaker with the salt solution. Okay, salt and water solution, you will keep it on a tripod. Okay, this is known as a tripod where you can heat it very well. Okay, this is our gas stove which gives a heat to the water, to this solution. Okay, so what happens after some time, after few minutes, we know that the water starts to boil it. And when does the water boils? The water boils at the 100 degrees Celsius. So when the water starts to boil, its state will be changed. Now how many states are there in a substance? It is of a solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas. Now water is present in the liquid form. Now it will transform. When you will heat this water, at one of the point it will start to boil, and if you will continue to heat it, it will change into a vapor form, that is known as a gaseous form or a vapor form. Okay, इसमें से क्या निकल जाएगा? धुआं निकलता है ना, वो जो ओके, तो ये धुएं को हम क्या बोलते हैं? वेपर बोलते हैं इंग्लिश में. ये पानी का वेपर है, वो निकलने स्टार्ट हो जाएगा. अगर अब जब ये वेपर निकलते हैं और आप कंटिन्यू हीटिंग करते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा पानी वेपर में ट्रांसफॉर्म होके पूरा पानी इस बीकर से चला जाएगा. अगर वो पूरा पानी इसमें से चला जाएगा, इस बीकर में से खत्म हो जाएगा, तो उसमें क्या रिमेन होगा? तो क्या उसमें सोल्ट ही बचा होगा. उसमें क्या होगा? सोल्ट. बिकॉज सोल्ट विल नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू वेपर, सो सोल्ट विल रिमेन. ओके,
और पानी निकल जाएगा। ये जो प्रोसेस है हम उसे क्या बोलते हैं, तो कि इवापोरेशन मेथड। With the help of the evaporation method, we can just separate the salt from the water. Okay, salt, अगर salt इस पानी में डिजोल्व हो जाता है, सॉल्ट पानी में डिजोल्व हो जाता है, तो हम उसे किस तरह सेपरेट कर सकते हैं, कौन सी मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम इवापोरेशन मेथड से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। इवापोरेशन मेथड में क्या होता है, तो कि कुछ नहीं, अगर सॉल्ट पानी में है तो उसे गर्म करो, हाँ, उतना गर्म करो कि सारा जो पानी है वो वेपर बन के चला जाता है, और उसमें क्या बचता है, तो कि सिर्फ सॉल्ट आपको, उसमें सॉल्ट ही आपको दिखाई देता है और बचता है, तो वो सॉल्ट आप फिर से निकाल सकते हो। तो सेपरेट हो गया, पानी और सॉल्ट दोनों सेपरेट हो गया। यस और नो? यस, इट गेट्स सेपरेटेड हियर। So this process is known as the evaporation method, and in evaporation method you have seen that many agarias, how they are performing, or how they are just making a salt from a sea water. Have you seen or not? I think that you may have seen that agarias making a salt from the sea water or a ocean water. Okay, वो कैसे बनाते हैं, तो कि वो अपनी जमीन में स्मॉल शैलो पिट्स बना देते हैं with the boundaries. Okay, they are having a big boundaries also. Okay, now they are filling the water. Of which water they are filling? They are filling the sea water, and sea water is always salty. You know that you cannot drink the sea water or ocean water. So यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको पानी, पूरा पानी भर देते हैं। ओके, ये जो स्क्वायर फील्ड है, ये जो हमारी स्क्वायर फील्ड है वो पूरे पानी से वो भर देते हैं। तो फिर बाद में क्या होगा, कि बाद में ऐसा एक पॉइंट आएगा कि दिन में तो आपको पता ही है कि धूप कितना होता है, तो वो धूप से, ये पानी है, वो धूप से एक किस तरह का पानी है, तो क्या सोल्टी वाटर है। ओके, सोल्टी पानी है। तो दिन में तो क्या होता है कि धूप बहुत होता है, हमें भी पता है, हाँ, वो धूप में ये पानी गर्म होता है। ये पानी गर्म होके वो क्या करता है कि वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कौन से स्टेट में ट्रांसफॉर्म होता है, तो क्या वो वेपर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये पानी वेपर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे हमने अभी बीकर में देखा ना, हमने बीकर में जो पानी और सोल्ट का जो सॉल्यूशन था, तो उसमें हमने क्या किया, तो गर्म किया। उसको गर्म करने से क्या होता है, तो कि वो पानी वो वेपर फॉर्म में चला जाता है, वो इवापोरेट हो जाता है। ओके, एंड नाउ इन दिस ऑल्सो दिस शैलो पिट्स है, तो उसमें पहले वो सोल्टी वाटर है, जो दरिया और सी वाटर है, वो इसमें भर देते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि अंडर द सन रेज इट विल गेट हीटेड। What? Okay, it will get heated. This water will get heated, and it will turn into a vapor. And it will turn into a vapor. Okay, and it will turn into the vapor. Okay, ये सब पानी वेपर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर यहाँ पे एक दिक्कत ऐसी है कि it will take time. It will take 4 to 5 days. Okay, so ये धीरे धीरे वेपर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ओके, और धीरे धीरे वो पानी ये शैलो पिट से निकल जाता है। मीन्स के वो पानी कहाँ पे चला जाएगा, वो पानी एनवायरनमेंट में चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ वेपर। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, तो कि यहाँ पे सोल्ट, जो सोल्ट है ना, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। क्योंकि पानी तो सब कुछ चला गया ये ऑपरेट होके, तो क्या बचेगा, जैसे हमने वो बीकर के एक्टिविटी में देखा ना अभी, तो इसी तरह यहाँ पे भी सॉल्ट आपको दिखने को मिलेगा। ये हमारा सॉल्ट है। ओके, ये हमारा सॉल्ट है, ये हमारा क्या है, सॉल्ट, और पानी सब कुछ निकल गया। फिर वो लोग क्या करते हैं, तो कि वो फिर ये सॉल्ट को इकट्ठा करते हैं और इंडस्ट्रीज में भेजते हैं फॉर द फर्दर प्यूरिफिकेशन। ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ इवापोरेशन। ओके, उसका एक डेफिनेशन भी है, वो भी हम जान लेते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या है। कि इवापोरेशन मेथड का डेफिनेशन
अगर हम देखें द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर into its vapor, the process of conversion of water into its vapor form is known as evaporation. ये इसका evaporation का डेफिनेशन है. नाउ एक्टिविटी नंबर 7. Now activity number 7. In this activity number 7, we will learn about the one of the another method that is known as a condensation. Condensation. We will learn about the condensation. ये कंडेंसेशन का मतलब क्या है? अभी हमने इवेपोरेशन में क्या देखा, तो पानी का वेपर फॉर्म में ट्रांसफर होना, और इस कंडेंसेशन में हम क्या देखेंगे कि वेपर का पानी में ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, वो हम इस कंडेंसेशन मेथड में बताया गया है. इवेपोरेशन में क्या होता है कि पानी टू वेपर, वाटर टू वेपर, एंड इन कंडेंसेशन वी विल सी वेपर टू water, how it will turn from vapor to water, and we can separate the things, that is also important. Okay, that's why we are taking the condensation method here. In condensation method, first of all take a beaker, और वो बीकर में आपको क्या करना है कि वो बीकर में आपको सैंड एंड सॉल्ट आपको दोनों मिक्स कर देना है. सैंड एंड सॉल्ट आपने मिक्स कर दिया इसमें. ओके, फिर आपको कहा गया है कि ये दोनों को सेपरेट करो, सेपरेट दिस. देन हाउ यू विल सेपरेट? you will not have any idea to separate these two things because both are having very small size. That's why you cannot separate these two things very easily. So हम क्या करते हैं कि उसके अंदर हम पानी डालते हैं, water. What will add? We will add the water. Add water in it. Okay, यहाँ पे water डाल दिया हमने, water भी डाल दिया, तो मिक्स हो जाएगा. कौन सी चीज़ इसके अंदर मिक्स हो जाएगी? तो क्या water plus salt will get mixed and sand will not mix. ओके, सैंड पानी के साथ मिक्स नहीं होता, वो हमने पहले भी पढ़ लिया. और सॉल्ट है वो तो पानी के साथ अच्छी तरह डिजोल्व, और इट विल मिक्स वेरी वेल. तो हमें ये तीनों चीज़ में से अब दो चीज़ मिल गई. क्या? तो क्या वाटर एंड सॉल्ट गेट मिक्स, हो वो एक चीज़ बन गई, और हमारा सैंड है वो एक दूसरी चीज़ बन गई. तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो सैंड है वो बॉटम में सेटल हो जाएगी. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द सैंड विल गेट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर एंड वाटर विल बी and the water also will get separated from the sand. So you can take out this water with the help of a decantation method. डिकेंटेशन मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं? हम पानी निकाल सकते हैं. तो अब दो चीज़ अलग हो गई. टू थिंग्स आर बीन सेपरेटेड, वन इज वाटर एंड द सैंड. सैंड और वाटर वो दोनों तो अलग हो गए, तो हमने सैंड निकाल लिया. और फिर जो वाटर के साथ जो स्मॉल पार्टिकल्स के जो सैंड थे, तो वो हमने फिल्ट्रेशन मेथड से निकाल लिया. सो वी आर गेटिंग द प्योर फॉर्म ऑफ अ वाटर. नाउ वी विल गेट द प्योर फॉर्म ऑफ द वाटर. बट वाटर प्योर नहीं है, उसके साथ कौन सा सब्सटेंस है? तो क्या उसके साथ सॉल्ट है, पर वो डिजोल्व है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता. तो अब जो पानी और जो सॉल्ट डिजोल्व है वो हमने अलग कर लिया. तो वो हम कैसे उसको सेपरेट करें? तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? तो कि हमें एक केटल लेना पड़ेगा. केटल, जो चाय की जो केटल होती है ना, वो हमें लेना पड़ेगा. ओके, ये हमारी केटल है. तो ये पानी हमने इसमें डाल दिया. फिर क्या हुआ? तो क्या फिर हमने फिर से उसको आग लगाई, यहाँ पे बॉटम पे आग लगाई, और ये पानी हीट हो गया. इसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमने उसका जो कवर है वो भी ढक दिया है इसको, केटल को. तो यहाँ पे क्या होगा
तो क्या ये पानी गर्म होगा, it will be heated more and more, will start to heat it more and more, and after some time it will transform into the vapor, and this vapor will come out from this spout, and the vapor will come out from this spout. और जो वेपर यहाँ से निकलता है, तो यहाँ पे हमने एक चीज और रखी है, वो है डिश। ओके, ये हमारी डिश है। उस डिश के ऊपर आइस क्यूब रखी है। क्या रखा है? आइस क्यूब। ये हमारी केटल है। यहाँ पे हमने फायर, जो आग है वो हमने यहाँ पे दिया है इस केटल को बॉटम पार्ट में, तो ये पानी उबलेगा। ओके, उबलने से वो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो वायु में या वेपर में ट्रांसफर होगा, और वो वेपर कहाँ से निकलेगा, तो क्या उसके स्पाउट से निकलेगा, उसके मुंह से केटल के मुंह से निकलेगा, और वो वेपर इस डिश को यहाँ पे टच होगा। ओके, हम उसे टच कराएंगे। जो वेपर इस केटल के मुंह से निकलेगा वो हम किस चीज़ से टच कराएंगे, तो क्या ये जो आइस डिश है, जो हमने प्लेट ली है उसके ऊपर हमने आइस रखी है, और जो उसका बॉटम भाग है ना, तो वहाँ पे हमने इस वेपर को टच कराया। ओके, तो यहाँ पे हम एक ग्लास रखते हैं, बीकर रखते हैं, और वो वेपर यहाँ से टच होने के बाद आफ्टर अ सम टाइम इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू द ड्रॉप्स अगेन, एंड वी विल गेट द वाटर, प्योर वाटर विल गेट इनटू दिस बीकर। यहाँ से वेपर इस प्लेट को टच होगा। ओके, इस वेपर को ये आइस कूल कर देता है, वेपर को कूल कर देता है, इसलिए वो किस में ट्रांसफॉर्म होगा, अगेन इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू द वाटर ड्रॉपलेट्स, एंड दिस वाटर ड्रॉपलेट्स विल स्टार्ट टू फॉल फ्रॉम दिस प्लेट इनटू द बीकर, एंड विल गेट द वाटर. And after doing this, you will just see here that water come out from the kettle, and you will just notice here that there is a present of a salt. So you can just take out the salt from this by the help of a condensation method. This is also given in your textbook also of a condensation method. This kettle is given, then dish is given, beaker is given. Okay, so like this you can just separate the salt from the sand. First of all we have just did the decantation method, then filtration method, and after that we have just done the condensation method. Condensation method का मतलब क्या है कि जो पानी का जो वेपर है उसे हम पानी में रूपांतर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन मेथड. ओके, एंड इवोपरेशन मेथड में क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इवोपरेशन? दैट इवोपरेशन मेथड में क्या इंक्लूड होता है कि पानी का वेपर फॉर्म और कंडेंसेशन का वेपर इनटू वाटर. ओके, इन लिक्विड फॉर्म, वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म और वाटर फॉर्म. दिस इज नोन एज अ कंडेंसेशन मेथड. अब कंडेंसेशन का भी हम एग्जांपल देख लेते हैं. कंडेंसेशन का जो डेफिनेशन है वो हमें क्या बताता है, द कन्वर्जन ऑफ water vapor, the conversion of water vapor into its liquid form is known as a condensation method. Condensation method. Now we'll move forward in this chapter, that is our last topic about the activity number 8. That in this they have explained us about the saturation. What do you mean by a saturated solution? That they have just explained in the activity number 8. Okay, in activity number 8 they have just explained which solution you will call as a saturation solution.
ओके, एक्टिविटी नंबर 8। तो पहले हम एक्टिविटी नंबर 8 को हम परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम उसमें से निकाल लेते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं। ओके, नाउ अगेन एज यूजुअल वी आर डूइंग दैट, टेकिंग अ बीकर। ओके, हमने एक बीकर लिया, और उसमें पानी है, थोड़ा सा पानी हमने लिया, आधा। फिर बाद में हम क्या करेंगे कि बाद में हम स्पून बाय स्पून विल ऐड द सॉल्ट इन इट। हम क्या ऐड करेंगे इसके अंदर? सॉल्ट। बट हाउ? बाय स्पून बाय स्पून। ओके, 1 स्पून पहले हमने सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया, हमने स्टीर किया अच्छी तरह, हमने घुमाया वो पानी को, तो क्या होता है कि सॉल्ट इसके साथ मिक्स हो जाता है अच्छी तरह। पहली स्पून जब हमें इसमें वी हैव जस्ट ऐड 1 स्पून दिस टू द वाटर एंड इट गेट्स डिजोल्व इन इट, देन ओनली यू हैव टू ऐड अनदर spoon of salt in the water, then you have to stir it well, so it will dissolve in it. After that, take another spoon of salt and you have to add to the water, stir it again, and it will be dissolved. Like that you have to just do. And there will be one such a point, at that time this salt will not dissolve in the water, because the quantity of the salt will increase than the quantity of the water that is present in the beaker. So we can say that there is a point where a salt cannot dissolve in this water, and that point it is known as a saturated point of this solution. So it is known as a saturation solution. तो saturation को हम अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं कि आपको कोई भी सॉल्यूशन आपने लिया है, शुगर एंड सॉल्ट और वाटर और शुगर और वाटर आपने लिया है। ओके, यहाँ पे हमने सॉल्ट और पानी लिया है, तो सॉल्ट हम इस तरह ऐड कर सकते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बाद में वो डिजोल्व नहीं होगा, पानी में डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि पानी की जो मात्रा है वो कम है। इसलिए अगर सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा तो वो डिजोल्व नहीं होगा पानी में, वो तो हमें पता है। ओके, एंड दैट पॉइंट इट इज नोन एज ए सैचुरेशन पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन. So this solution it is known as a saturation solution. So it means that now after adding the salt in the water and one point will come, at that time the salt will not dissolve with the water, it will not dissolve in the water. So it means that now the salt can be dissolved or cannot be dissolved, no more dissolved. It means that now salt cannot be dissolved in the water, and this is known as saturated solution. ओके, सो दिस इज नोन एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं कि अगर आपके पास, यू हैव टू एक्सप्लेन लाइक दिस, कि अगर पानी में अगर हम सॉल्ट ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद इस तरह का एक पॉइंट आ जाता है कि जब वो सॉल्ट पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होगा, ओके, एट दैट पॉइंट इट इज नोन एज अ सैचुरेशन पॉइंट. Okay, or we can say saturated solution. If I say that take a saturated solution of a salt and a water, then which solution you will take? You will take the saturated solution of a water and a salt by adding a salt in a water till that now no more salt will be dissolved in it. Okay, ऐसा सॉल्यूशन लेके आना कि अगर आप इस तरह का सॉल्यूशन लेके आते हो कि अगर मैं भी उसमें 1 स्पून सॉल्ट डालूं और वो डिजोल्व हो जाएगा तो वो सैचुरेटेड नहीं होगा. पर सैचुरेटेड मीन्स क्या कि अब इसमें कोई ऐड नहीं कर सकता, इसमें अब उसकी लिमिट पूरी हो गई, पानी की लिमिट पूरी हो गई है कि वो सॉल्ट को और
डिजोल्व कर सके, कि वो पॉइंट आता है ना, तो अब हम इसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और पहली एंड बूझो, these two characters are mentioned in this chapter from starting of the chapter to the end of the chapter. Now पहली के पास भी ऐसा ही कंडीशन था कि उसने पानी में इतना सारा जो सॉल्ट है डाल दिया था कि अब वो डिजोल्व नहीं होता है। अगर उसको सेपरेट करना है तो वो कैसे कर सकता है, तो उसके लिए एक्टिविटी नंबर 9 आपको दिया है, एक्टिविटी 9। और एक्टिविटी 9 में आपको समझाया गया है, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपके पास है, सॉल्ट और पानी का आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया, फिर अगर आपको उसको डिसॉल्व करना है और भी सॉल्ट इसमें डिसॉल्व करना है, तो आपको क्या पहले करना पड़ेगा कि ये हमारा बीकर है, इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्ट और वाटर, बट सॉल्ट इज प्रेजेंट। Now you cannot add any more salt in it, but if you want to add more salt in this water, then what you have to do? Then first of all you have to heat this solution. After heating this solution, you will notice that some of the salt will get dissolved with the water, and then you can add more water in it. Okay, so this is shown in the activity number 9. This is shown in the activity number 9, that how you can dissolve a more salt in the saturated solution by heating it. By heating this, you can add more salt in this solution or a saturated solution. In activity number 10, that you have to perform at your home, that you have to make a saturated solution, then you have to heat it. Okay, after heating, then you have to notice that how much more spoon you are adding to the solution. Okay, then how much amount of sugar or salt you have added, that you have to see in this activity number 10. That also we will see on the board. Okay, how we can do that. Now in this activity number 10, you have to take a 2 beaker. One beaker that I will show you, and another beaker that you can do at your home also, or if you just understand here, then no need to do it that also. Okay, in activity number 10 they have said that you have to make a saturated solution. How? By taking the water, fill it with the half of the water. Okay, you have filled this beaker with the water, then add 1 spoon of the salt in it. Okay, then stir it well. सॉल्ट हमने ले लिया, फिर यू हैव टू स्टीर दिस सॉल्यूशन एंड इट विल डिसॉल्व इन दिस वाटर. ओके, लाइक दैट you have to just, after dissolving 1 spoon of water, then you have to add another spoon of water. After dissolving second spoon of salt, then you have to add third one, fourth one. Like that you have to add it till the solution becomes saturated. सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि अब उसमें सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा, ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि अब उसमें सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा। वो पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम उसे कहते हैं। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने ले लिया, तो आपको क्या करना है, आपको टेबल में कितनी स्पून आपने सॉल्ट की ली है वो लिखनी है। ओके, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, how many spoon of salt you have added, that you have to write in the table. Like that you have to perform with the sugar. पहले पानी लो, फिर 1 by 1 स्पून ऑफ शुगर आप इसमें ऐड करो, डिसॉल्व हो जाएगा। बाद में आप दूसरा स्पून ऑफ शुगर आप ऐड कर सकते, इस तरह ऐड करते जाओ। ऐसा पॉइंट आएगा जब इसमें शुगर डिसॉल्व नहीं होगा, तब आपका ये सॉल्यूशन क्या होगा? ये सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। और आपको नोटिस करना है कि कितनी स्पून से, that how many spoon of sugar that you have used to make a saturated solution, that you have to write in the table that is given in the textbook already. So this was our chapter number 5, separation of substances, and we have learned many methods in the separation of substances. First was our hand picking,
threshing, winnowing, sedimentation, decantation and the filtration. Then we have learned today evaporation, condensation and the saturated solution, how to make a saturated solution. So all these things we have learned in this chapter, and we have found many other words also like churning. Churning का मतलब क्या है? To make a buttermilk, we are churning the curd. मीन्स जो उसका जो मशीन होता है ना वो घूमता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? चर्निंग कहते हैं. वो भी एक हमारे लिए नया वर्ड है. फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, sieving method also. Okay, we have just learned about the sieving method. Then filtration, hand picking, decantation, condensation, winnowing and threshing method. All this method we have used. We have seen that how it is useful to separate all the things. Which method is used when, that also we have seen in this chapter. And we can use all this method at our home also. So we can learn more about it. Okay students, so this was our chapter number 5, separation of substances. You will get the litho, so you can complete it from that also. Your chapter number 5, I hope you will complete it well. And if you don't understand anything, then you can ask to me at any time. Thank you students and have a good day.